classmates who are. I am Urvashi Sharma. Most people don't think about their joints until there is a problem. फिर चाहे वो प्रॉब्लम आर्थराइटिस की हो या टर्न ACL की, ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्रीज कर देंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऐसा जॉइंट है जो कि बॉडी का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट इसका टाइप है। साइनोवियल जॉइंट्स आर ऑल अबाउट मूवमेंट्स। जहां पर भी बॉडी में मूवमेंट होती है वहां साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि शोल्डर, हिप या फिर नी। नी जॉइंट तीन जॉइंट से मिलकर बना है। पहला मीडियल कंडाइलर जॉइंट और दूसरा लेटरल कंडाइलर जॉइंट। लेटरल साइड बॉडी के बाहर वाली कहते हैं और मीडियल साइड बॉडी के अंदर को। थर्ड टाइप इज पैटेलो फेमोरल जॉइंट। ये एक सैडल जॉइंट है बिटवीन फीमर एंड पैटेल। Now we talk about the articular surfaces of limb. Articular surface में three surfaces आते हैं। पहला condyles of the femur, दूसरा patella, and third is condyles of the tibia. Ligaments. Next one. This is a hand drawn diagram of ligaments. Ligaments सबसे पहले हम बात करेंगे lateral meniscus की and medial meniscus। जो meniscus होता है वो body को cushioning provide करता है। ये क्योंकि नी जॉइंट में पूरे बॉडी का वेट आता है, इसलिए ये मैंडेटरी होता है कि वहां पर मेनिस्कस हो ताकि जो कॉन्डाइल्स है वो डैमेज ना हो। सेकंड, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट मींस टू क्रॉस इन स्पेनिश। जैसे कि इस डायग्राम पर देख रहे हैं, ये दोनों जो लिगामेंट्स हैं ये आपस में क्रॉस करते हैं, इसलिए ये क्रूशिएट लिगामेंट्स बोलते हैं। ये दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टेबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। किसी का अगर एसीएल टॉन हो जाता है तो उसको बॉडी वेट डालने में जॉइंट में प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ फॉरवर्ड बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। Third one we talk about is lateral collateral ligament and medial collateral ligament. These ligaments provide rotational stability to the joint. ये side to side rocking को prevent करते हैं. This whole joint is filled with synovial fluid. वहाँ पर ये मैंने draw नहीं किया है because अगर draw करते तो पूरा cover हो जाता है. Because synovial joint जो है lubrication provide करता है और वो पूरे में cover होता है. Now I will request Vera to come over and proceed with the presentation. Thank you. A very good morning to all of us present here. I will be explaining the topic bursa of the knees. What are bursa? Bursa are the small filled sac that act as a cushion to reduce the friction between the bones. And when it is intermediate, it is called bursitis. The bursas, there are 12 bursas around the knee, which are 4 anterior, 4 lateral, and 4 medial bursa. On the anterior side, we have subcutaneous prepatellar bursa, subcutaneous infrapatellar bursa, suprapatellar bursa, deep infrapatellar bursa. And on the medial side, we have medial gastrocnemius, mancini bursa, semimembranous bursa between semimembranous and medial condyle of femur. On the lateral side, we have lateral gastrocnemius bursa, pivotal bursa, pivotal or popliteal bursa, subpopliteal bursa. And now we will be talking about the relations of the knee joint. On the anterior side of the knee joint, we have the patellar ligament and the patellar plexus of the nerves. On the posterior side, the relations are popliteal vessels, tibial nerve, lateral head of the gastrocnemius, plantaris, common peroneal nerve, semimembranous, and gracilis. On the medial side, we have sartorius, gracilis, saphenous vein, and saphenous nerve, along with the semimembranous. And on the lateral side, which is away from the midline, we have bicep, sphenolis, and tennis of the popliteal. Now let's talk about the blood supply. The blood required for the knee joint are supplied by these 5. The 5 genicular branches of the popliteal artery, descending genicular branch of the femoral artery, descending branch of the lateral circumflex femoral artery, 2 referent branches of the anterior tibial artery, the circumflex fibular branch of the posterior tibial artery, and for the nerve supply, we have femoral nerve, genicular branches of tibia and common femoral nerves, and the occipital nerve. Over to Urvashi.
Good afternoon, everyone. Now, I will proceed with the topic that is why knee is the most important problem. So basically, जो knee होता है, वो structurally एक weak joint बोला जाता है, क्योंकि इसके जो articular surface होते हैं, वो congruent नहीं करते हैं. Now, अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से factors होते हैं जो आपके knee को stabilize करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है हमारा cruciate ligament, जो कि आपको anterior posterior stability को maintain करके रखता है. सेकेंड इज कोलेटरल लिगामेंट, जो कि आपकी साइड टू साइड स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है. नाउ थर्ड इज ऐसे वेरियस लिगामेंट्स होते हैं जो कि आपकी कैप्सूल की स्ट्रेंथ को बना के रखते हैं. लास्ट इज इलियोटिम्बल ट्रैक्ट्स, जो कि आपके हेल्प करते हैं टू मेंटेन द स्टेबलाइजिंग द नी. नाउ वी कैन प्रोसीड टू द क्लिनिकल एनाटॉमी. सो फर्स्ट इज ओस्टियोआर्थराइटिस. सो बेसिकली ये एक एज रिलेटेड कंडीशन होती है जहाँ पर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग एंड पेन की जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ सेकंड इज क्लेरिमैन नी. अब हम इसे क्लेरिमैन क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले के टाइम के जो प्रेस थे हम उन्हें क्लेरिमैन बताते थे और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उन्हें होती थी क्योंकि वो जब भी वर्शिप वगैरह करते थे तो उन्हें फ्रीक्वेंटली नीज को बेंड करना पड़ता था, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें होती थी. अब हम बात करेंगे ये होता कैसे है. तो हमारे यहाँ पर एक सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर वर्सा होता है इन फ्रंट ऑफ द पटेलर टेंडन, जो कि आपका उस पॉइंट पे आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन एंड स्वेलिंग हो जाती है. नाउ द थर्ड इज हाउसमेड नील. सो जब भी कोई पर्सन नील डाउन करके वर्क करता है, जैसे कि हमारे मेड्स हैं, जब भी उन्हें फ्लोर क्लीन करना पड़ता है तो उन्हें अपनी नील्स को डाउन करना पड़ता है फ्लोर क्लीन करने के लिए, और ये प्रॉब्लम उन्हें होती है. यहाँ पर जो आपका प्री पटेलर वर्सा होता है इन फ्रंट ऑफ द पटेला, वहाँ पर आपका स्वेलिंग और पेन हो जाता है. नाउ द लास्ट इज बेकर सिक्स. अब इसका बेकर सिक्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारे पुराने ब्रिटिश सर्जन थे जिनका नाम विलियम वॉरेन बेकर था, उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब करा था. यहाँ पर हमारे बिहाइंड द नी एक पर्सन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पॉपलेटर पर्सा, जहाँ पर हमारा एक्यूमुलेशन होने लगता है साइनोवियल फ्लूइड का, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइटनेस स्टिफनेस हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग और पेन होने लगता है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज मूवमेंट. बेसिकली यहाँ पर दो मूवमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज फ्लेक्शन, सेकंड इज एक्सटेंशन. फ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी हमारी नी बैंड करती है तो जो थाइस और नेक्स के बीच का एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो कि हमारा परफॉर्म होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स के थ्रू. एंड द सेकंड इज एक्सटेंशन, जहाँ पर हमारे जब भी हम नी को एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर नेक्स और थाइस का जो एंगल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारा परफॉर्म होता है एक मसल के थ्रू जिसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल वर लाइक इट.